Hi everyone, welcome back to Scholars Academy, and we are here with our third video. As discussed in the last video, the topic for this video will be logic gates. And before starting with logic gates, as it is our ritual and we always do it, we will discuss the answers of the homework questions given in the last video. So let's go forward with them. These were your homework questions, guys. If you remember, I hope you remembered them. So the first question was AB plus AC whole bar plus AB bar C bracket AB plus C. So now let's see the solution for this question first. So first we write the question itself in the solution, and now we will go forward. From in this step, in the first step, what I have done, I have opened this bracket. If you can see it here, I have opened the bracket and wrote and multiplied the things with it. So it became a b bar c a b plus a b bar c c. And for this term, if you can see, I have applied the property of x y whole bar equal to xy plus y bar. I hope you can see it clearly. So at this step, what I found the next thing was that I can see that b bar is getting multiplied by b. That is, a number is getting multiplied by its inverse. And we know that a number into its inverse is always 0. So this whole term will become 0. So we just wrote the exact thing down there, and we wrote 0 there. So it became AB plus A bar plus C bar plus 0 plus A B bar, and this C into C, this is nothing, it doesn't make any sense, it will become C only. X into X is X, so C into C is C. So now at this step, what we will do for the next step, I can see that A is common in these two terms. So what I will do, I will take A common from these two terms and write it outside. And in bracket, I got B from this first term and B bar C from the second term. So now here, I can again see another property, that is x plus x bar y is equal to x plus y. So here my x is B and my y is C. So it became B plus C. And the rest remains the same. Now, you would think that we cannot do anything again here. But if you clearly see, we can use this property again. If you see this term a bracket b plus c, this is our x bar y, and this term a bar, this is our x. So we applied this property again on this, and we got x, which was our a bar, plus b plus c, and b plus c whole together was our y, and c bar as it is. Now let's see further. So we know that c plus c bar will give 1. Anything plus its complement or its inverse is equal to 1. So c plus c bar will be 1. So it became a bar plus b plus 1. So now if you see 1 plus x, 1 plus anything is equal to 1. So this whole term can further be reduced and written as 1. And when after reducing an equation we get a term that becomes equal to 1, it is known as, has given a special term named as tautology. You will hear this term tautology more in your in your discrete mathematics subject, DM, it's the short form for it, less in digital electronics,
DLCD, less than DLCD, but more in DM. But you need to know this term, that whenever we get a 1 at the end of something, it's known as tautology. And tautology means that this phase will remain same for any number of inputs. It will always be true. So how do we now represent our answer? We always write the question equal to our answer in the bracket. So we have done that and put that in a box. Always do this while doing your exam. So we have wrote here a bar plus b plus 1 is equal to 1. So this is the answer of our first question. Now let's move on to the solution for the second question of the homework, which was this, if you remember, ABC plus A bar B plus ABC bar plus AC. So now let's see the solution for this question. So the solution for this question is this. So we will see how this happened. First we write the question itself. This is our first step. Now can you guys see that in these two things AB is coming common? So what I will do, I will take AB common and rest in brackets. So from this term I got C, and from this I got C bar. So AB bracket C plus C bar plus the other terms as it is. And we know that X plus X bar is equal to 1. So this whole term became 1. So now it became AB plus A bar B plus AC. And now in these two terms, I can see that B is coming common. So I will take B common and write A plus A bar plus AC. And then again apply the same property, X plus X bar is equal to 1. So it became B plus AC. And further we cannot simplify it. So this is our final answer. And the final answer we always write in a box with the question. So this was our question, ABC plus A bar B plus ABC bar plus AC is equal to the answer, which was B plus AC, always in a box. It makes it easier for the checker to check your answers and see if it is correct or not. Now let's move on to the main topic of this video, that is logic gates, the main purpose why we are here. And now let's just start with logic gates. So logic gates are of different types: AND gate, OR gate, NOR gate, NAND gate, NOT gate, XOR gate, XNOR gate. But what are these gates? These are basically some functions. Like AND gate is used for logical multiplication. These are some things predefined, I can say they are predefined rules that you follow while doing something, and you will see that we will simplify all these tables using using the simple rules of our second video. So let's just get started to it. The first gate, the basic gate that is taught to you, is the AND gate. So what is AND gate? As I just told you, it is used for logical multiplication of binary operation. And now, like, we will always make a table like this for these gates, okay? I hope you can see the table. So now the purpose is to learn this output of this table, like what will be the output in what all situations. But there is a trick for it. You don't need to like memorize it. You need to just understand the trick or the formula. So let's first see what the 3 points of our topic is saying. It is used for logical multiplication, we heard. The second point says the output state is high, that is 1 is high.
In the first video I said 1 is on and 0 is off. So high is another term for on and low is another term for off. So now in this video 1 is high and 0 is low. So if both the inputs are high, what is this point saying कि AND गेट का आउटपुट 1 आएगा सिर्फ और सिर्फ तब जब जो A और B या जितने भी इनपुट्स उसके अंदर जा रहे हैं वो सब हाई हो, मतलब वो सब ऑन हो, वो सब 1 हो, और इसका आउटपुट बाकी सारी टाइम पे 0 रहेगा. द आउटपुट स्टेट इज लो इफ एनी ऑफ द इनपुट्स इज लो. अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट हमारा 0 आएगा. अब इन्हीं दो लाइंस को यूज़ करके हम इस टेबल को भरने की कोशिश करते हैं. ठीक है, 0 और 0 है, मतलब A भी लो है और हमारा B भी लो है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा. अभी बताया कि जब भी कुछ एक भी 0 हो जाए तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, बट इसमें तो हमें दोनों ही 0 मिल रहे हैं, तो हमारा आउटपुट 0 है. इसमें A 0 है और B 1 है, बट हमारा तो कंडीशन है, हमें चेक करना है कि कोई भी एक, इफ एनी ऑफ द इनपुट्स इज लो, तो एनी में A तो हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा डायरेक्टली 0. सिमिलरली इसमें हमारा B 0 हो गया, तो ये भी 0. सिर्फ और सिर्फ 1 1 जब दोनों हाई है, हमारा सेकेंड पॉइंट हमें यही कह रहा था, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1. सो अब हमारा दोनों हाई है तो ये 1 होगा. सो सिंपल. देखो हमारी टेबल कितनी जल्दी बन गई. अब इतना समझो कि इस गेट में ये सिंपलेस्ट टेबल बन सकती है ऑफ टू इनपुट्स. अब इसमें 3 भी हो सकते हैं, 2 और मोर, 2 से कम नहीं हो सकते, 2 और मोर इनपुट्स हो सकते हैं, बट 2 से कम कभी नहीं होंगे. इट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स बट नेवर लेस देन 2. ओके, अब इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है, मतलब इस गेट है कोई, इसको सर्किट डायग्राम बनाना है पड़े हमें कभी, जो हमें आगे बनाना पड़ेगा, तो उसमें हम कैसे बनाएंगे. अगर आप ये देखो, ये बल्ब जैसी ही चीज़ देखने जैसा, ये इसका लॉजिक डायग्राम होता है. अब एक बार ही देख लेते हैं बनाते कैसे हैं. यहाँ पे तो बना हुआ है, तो ये देखो, कुछ नहीं करना, you just need to put a line, then a curve and 2 input lines, or the number of input lines can be 3 also. For this example it's 2, and 1 output line. The output will always be 1, and you write A, B and X. So this is the symbol of your AND gate. अब AND गेट की एक्सप्रेशन क्या होती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी पता होनी चाहिए. सो AND गेट की लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है A इंटू B इज इक्वल टू X. ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी. जैसे अगर आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली A इंटू B बोल रहा है, 0 इंटू 0 करो 0 ही मिलेगा, 0 इंटू 1 करोगे 0 ही मिलेगा, 1 इंटू 0 करोगे तब भी 0 ही मिलेगा, 1 इंटू 1 करोगे तभी सिर्फ 1 मिल सकता है. सो ये एक्सप्रेशन हमारी बिल्कुल ठीक है, एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज एक्सप्रेशंस. सो नाउ आई थिंक वी आर डन विद द AND गेट. अब हम अपना अगला गेट देखते हैं, दैट इज आर OR गेट. OR गेट. सो OR गेट, इट इज अनदर गेट जो हमारा 2 और मोर इनपुट्स लेता है. ये भी हमारा क्या लेता है, 2 और मोर इनपुट्स. इसमें एज द नेम सजेस्ट और एंड था वो, मतलब कि दोनों सेम होने चाहिए, और एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक हाई है एक लो है, एक ऑन है एक ऑफ है, 1 देगा. ये कब 0 देगा, ये सिर्फ तब 0 देगा
when both the inputs are low. This will give 0 only when both the inputs are low. Otherwise it will always and always give 1. तो अब इसकी टेबल भी बनाते हैं, ठीक है। 0 0 पे दोनों 0 है तो 0 देगा। एक और लो है हमारा और एक हमारा हाई है, या ए हमारा ऑफ है और बी हमारा ऑन है, और इसका हमें और करना है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। सिमिलरली ए हमारा 1 है, बी हमारा 0 है, और इसका हमें और गेट करना है तो इसका भी इनपुट हमें 1 मिलेगा। एंड दोनों 1 है तो हमें 1 ही मिलेगा। कि हमारी कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी एक 1 हो जाए तो हमें 1 मिलेगा, कोई भी एक, और दोनों 0 है तभी 0 मिलेगा। तो इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन जो बनती है वो बनती है a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। अब इसको भी अप्लाई करके देख लो। 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, एंड 1 प्लस 1 इट इज़ 2। बट मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 1 प्लस 1 को हम 1 ही लिखते हैं, सो इट इज़ 1। अब हमारा नेक्स्ट गेट, ये जो अभी गेट्स हुए हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक गेट्स हैं। तो देयर आर 3 बेसिक गेट्स। अभी हमने 2 बेसिक कर लिए हैं और ये हमारा तीसरा बेसिक गेट है। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसमें सिंगल इनपुट, ओनली इट हैज़ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। उसमें 2 और मोर थे अभी तक जो हमने पढ़े थे, इसमें ये सिंगल ही लेता है और सिंगल ही देगा। तो इसका काम क्या है, ये एक ऐसा गेट है जो इनपुट लेता है उसी को इन्वर्ट कर देता है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है और आपको आंसर दे देता है। मतलब कि अगर आप 0 डालोगे तो ये 1 दे देगा, और 1 डालोगे तो 0 दे देगा। अब तो मैंने ट्रुथ टेबल ही बता दी, तो मेरे को अब ट्रुथ टेबल का आंसर भी बता दो आप लोग। 0 पे क्या देगा, 1, वेरी गुड, और 1 पे देगा उसका ऑपोजिट, दैट इज 0। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या बनी, x इज इक्वल टू a बार। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको और गेट बनाना नहीं सिखाया। मैं और नॉट गेट दोनों साथ में बनाना सिखा देती हूँ। और गेट हम बनाते हैं, एक ऐसा कर्व बनाया, उसके साथ एक ऐसे लाइन बनाई, एक लाइन बाहर क्योंकि सिंगल आउटपुट मिलेगा, एंड जो भी इनपुट लाइन्स है फॉर दिस इट वाज 2, सो a b और x। दिस इज आवर और गेट। और जो हमारा नॉट गेट होता है, जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, इट जस्ट इनवर्ट्स, उसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल के आगे एक सर्कल लगाते हैं। दिस सर्कल कैन बी हॉलो और यू कैन कलर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक ही लाइन बाहर जाएगी और एक ही लाइन अंदर आएगी, तो a और यहाँ पे x। तो दिस इज आवर नॉट गेट। अब हम जो अगले 2 गेट्स पढ़ेंगे आगे, वो हैं नॉर गेट और नैंड गेट। एज द नेम सजेस्ट, नॉर गेट, और दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, उसमें मेरे को एक n दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मेरा 4th पॉइंट देखो, व्हाट आई हैव रिटन, इट इज़ जस्ट एन और गेट प्लस अ नॉट गेट, दैट इज़ अ नॉर गेट। तो हमें क्या करना है, पहले उस चीज़ का और करना है और फिर उसी चीज़ को नॉट कर देना है, जो आउटपुट आएगा उसका नॉट, दैट विल गिव यू द नॉर गेट। अब इस गेट के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक यूनिवर्सल गेट है। मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था यूनिवर्सल गेट्स का मतलब क्या है, जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि हम इन गेट से, अभी हम जितने भी गेट्स पढ़ेंगे हम वो सारे गेट्स बना सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग नॉर गेट अलोन।
उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के सर्किट्स में अलग अलग वे से उसको कनेक्ट करके हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्स नॉट गेट सब बना सकते हैं। तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट जस्ट सेज कि इट्स द कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट ऑफ ऑर गेट, जो मैंने आपको समझा दिया। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट इट टेक्स 2 और मोर इनपुट्स। ये तो हमने देखा ही था। अब आप लोग मेरे को जल्दी से फटाफट से आप बताओगे मेरे को टेबल और की, क्योंकि अब वो हमने अभी पढ़ी। जल्दी बताओ, 0 पे क्या देगा? 0, करेक्ट। 1 0 1 पे क्या देगा? 1, वेरी गुड। 1 0 पे क्या देगा? वेरी गुड, 1 देगा। और 1 1 पे क्या देगा? 2 होता है पर 1 देगा, वेरी गुड, आई लाइक इट। अब हमें इसका बस उल्टा कर देना है, इसका नॉट, और गेट का नॉट। तो 0 का नॉट क्या होगा? 1, 1 का नॉट क्या होगा? 0, 1 का नॉट क्या होगा? 0, 1 का नॉट क्या होगा? 0। सो इफ यू सी दिस इज योर फाइनल टेबल, 1 0 0 0, ये आपका फाइनल आंसर है नॉर गेट का। नॉर गेट के लिए आपको ये वाला बॉक्स देखना है, ना कि उससे पहले वाला। यू नीड टू सी दिस बॉक्स, ओके। ये वाला बॉक्स देखेंगे आप नॉर के लिए। अब नॉर गेट की एक्सप्रेशन क्या होती है? हमने और का ही एक्सप्रेशन लिखा और उसका नॉट कर दिया। सी, आई कैन नॉट राइट दिस एक्सप्रेशन एज ए बार प्लस बी, ये नहीं है, दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इट विल बिकम ए बार बी बार, और अगर आप देखो वही होगा। 0 0 का बार हो रहा है, दोनों का बार हो रहा है, तो दोनों 1 बन गए एंड आउटपुट 1 आ रहा है, बाकी सब का ऑपोजिट ऑपोजिट हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स अ ऑपोजिट ऑफ एंड गेट। तो इसको ये बहुत ध्यान रखना कि का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, इट्स नॉट ए बार, दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट दिस, इट इज होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका डायग्राम तो देखो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हमने अभी और का डायग्राम देखा था, दिस वॉज और का डायग्राम। और के डायग्राम से पता है बस कितना सा फर्क है? पहले और गेट बनाया और उसके आगे एक सर्कल लगा दिया, ए बी और एक्स। ये सर्कल टेल्स अस कि इट जो और गेट हो रहा है ये उसका नॉट कर रहा है। सो दिस इज आर नॉर गेट। ठीक है, अब एक्सप्रेशन भी पता चल गई। अब हम अपना सेकेंड यूनिवर्सल गेट देखते हैं, दैट इज आर नैंड गेट। नैंड गेट इज अ सेकेंड यूनिवर्सल गेट। इससे भी हम सारे गेट्स बना सकते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। ठीक है, और जैसे नॉर और प्लस नॉट था, ऐसे ही नैंड एंड प्लस नॉट है और वो नैंड बन जाता है। सो इट इज़ बेसिकली जस्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। और इसमें भी 2 और मोर इनपुट्स ले सकते हैं और एक सिंगल आउटपुट मिलता है। तो अब हम फटाक से एंड गेट का टेबल बनाएंगे और वो टेबल आप लोग मेरे को बताओगे, एंड देन हम उसका नॉट करके नैंड का टेबल समझेंगे। ठीक है, एंड का टेबल बताओ। 0 0 पे 0, वेरी गुड। 0 1 पे वेरी गुड, 0। 1 0 पे 0, वेरी गुड। 1 1 पे 1, वेरी गुड। सो अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिस गिव्स मी 1, वेरी गुड। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट अगेन 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट अगेन 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। थोड़ा सा मैं एक बारी बता दूं, अगर कंफ्यूज मत होना आप। जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि दिस इज एंड गेट, ए
बी, ए बार बी बार। बट उसमें प्लीज़ ध्यान रखना कि ये जो टेबल है ना, ये पूरी रिवर्स हो रही है। ये 1 0 0 1 1 बन जाता है, 0 1 1 0 बन रहा है, 1 0 0 1 बन रहा है, और 1 1 0 0 बन रहा है। तो ये उसकी टेबल है। इन्हीं इनपुट्स के साथ 0 0, इन्हीं इनपुट्स के साथ मत करके देखना, इसका पहले ए और बी का आप नोट करोगे और फिर आपको ये आंसर मिलेगा। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ऐसे मत याद रखना, इसको आप ऐसे ही याद रखोगे। ये बस आपको समझाने के लिए था कि इट्स नॉट ए बार प्लस बी बार, इट इज़ ए बार बी। सो इसका आप एक्सप्रेशन आप यही याद रखोगे, विच इज़ ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज़ अ साइन फॉर नॉट ऑल्सो, or you can write it as a plus b का होल नॉट। ठीक है, मतलब पूरे के ऊपर एक कंटिन्यूअस बार, तब भी इट मीन्स द सेम थिंग। अब हम अपना एक्सप्रेशन देख लेते हैं नैंड गेट का। सो नैंड गेट का एक्सप्रेशन है ए बी का होल नॉट, वही चीज़ जो हमने एंड के साथ करी, ए बी लिखा एंड का एक्सप्रेशन और उसका होल नॉट कर दिया। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी का होल नॉट। ओके, नाउ डू यू वांट मी टू शो हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम? चलो लेट मी जस्ट शो इट, इट वोंट टेक टाइम। एंड गेट बनाएंगे, इनपुट लाइन्स देंगे, एक सर्कल लगाएंगे और आउटपुट लाइन दे देंगे, ए बी एक्स। दिस इज आर NAND गेट। एंड पेपर में रफ हैंड ड्राइंग ही होती है, स्केल पेंसिल लेके मत बैठना प्लीज़ करने। सुंदर बनाना, साफ बनाना, बट रफ हैंड ही बनता है। अब हमारा नेक्स्ट गेट, दीज आर द लास्ट 2 गेट्स एंड आफ्टर दिस द वीडियो इज फिनिश्ड for today. The second last gate is XOR gate. अब ये जो 2 गेट्स हैं ये फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं। XOR गेट बोलते हैं इन्हें एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, या XNOR भी बोलते हैं। सो कंफ्यूज मत हो जाना, X और लिखा हो, एक्सक्लूसिव और लिखा हो, EX और लिखा हो, सेम ही चीज़ है। ये मॉड्यूलस सम परफॉर्म करने के काम में आते हैं। ये वाले गेट्स हमें क्यों चाहिए जब हमारे पास बाकी गेट्स हैं? ये हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल सर्किट्स में काम आते हैं, लॉजिकल कंपैरेटर्स में काम आते हैं, एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब ये तीनों टर्म्स जो मैंने बोली ये क्या थी, ये हमारे वीडियोस के आगे के टॉपिक्स हैं। अगर आपने सिलेबस ध्यान से देखा हो तो उसमें ये सब टॉपिक्स कवर्ड हैं। ये हम देखेंगे क्यों काम आते हैं। वहाँ पे ना बेसिकली ये गेट थोड़ा काफ़ी हेल्प कर देता है सर्किट छोटा करने में, तो ये उधर बहुत काम आते हैं, तो ये वेरी गुड। बट इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो आप लोग नहीं भूल सकते एट एनी कॉस्ट इज़ दैट ये सिर्फ दो इनपुट्स ही लेते हैं एट अ टाइम। जो हमारा अभी तक जितने गेट्स थे एंड और नॉर नैंड, इसमें मल्टीपल इनपुट्स जा सकते थे, 2 या 2 से ज़्यादा जा सकते थे। बट हमारा XOR गेट और इसके बाद जो हम अगला गेट पढ़ेंगे XNOR गेट, इसमें सिर्फ दो ही इनपुट जा सकते हैं एक टाइम पे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपको 3 इनपुट डालने हैं तो आप क्या करोगे, पहले 2 को डालोगे, उसके साथ उसका एक XOR बनाओगे गेट, और फिर उसका जो आउटपुट आएगा उसको कनेक्ट करोगे एक और XOR गेट के साथ। सपोज लेट मी शो यू कैसे होगा ये। दिस इज सपोज योर वन ऑफ योर XOR गेट AB, आपको 3 इनपुट्स के साथ बनाना, ठीक है। और ये मेरा एक और गेट आएगा। सो A B C
यहाँ पे x मिला, x इसमें गया c के साथ, और ये हमारा फाइनल इनपुट सपोज y। तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा for 3 inputs. If you have three inputs and you need to implement it using XOR gate. तो ये ध्यान रखना, ये आगे बहुत आता है एंड बच्चे क्या करते हैं, वो तीनों ही बनाते हैं क्योंकि उनको आदत होती है कि एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट में मल्टीपल जा सकते हैं, इट्स नॉट नो कंडीशन कि कितने जा सकते हैं। तो वो 3-4 जितने भी आते हैं इनपुट सारे साथ में ही बनाते हैं, देन कराया आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, आपके दोस्त करे तो करने दो। एंड वैसे तो मैं कहूँगी इफ़ दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, डू रिकमेंड द चैनल टू देम ऑल्सो, क्योंकि सबका भला हो साथ में तो मज़ा आता है। चलो अब इसकी टेबल भरते हैं, समझते हैं इसकी टेबल कैसे भरी जाएगी, क्योंकि अभी मैंने ऊपर के पॉइंट से तो बताया नहीं कैसे भरेंगे और इसका क्या फ़र्क है। ये जो XOR गेट है ना, ये क्या करता है, जब आपके दो डिसिमिलर इनपुट्स होते हैं, 0 1 है, 1 0 है, ये आपको तब 1 देगा। और जब आपके सिमिलर इनपुट्स हैं तब ये आपको 0 देगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब मेरा 0 0 है तब ये मेरे को 0 देगा, जब मेरा 0 1 है तब ये मेरे को 1 देगा, जब मेरा 1 0 है मतलब डिसिमिलर है तब 1 देगा, और जब 1 1 है ये 1 नहीं देगा, ये मेरे को 0 देगा, क्योंकि दोनों सिमिलर इनपुट्स हैं। अगर आप इसकी एक्सप्रेशन देखो जो मैंने यहाँ लिखी है, a दैट इज़ a बार b प्लस a b बार। अब हम ना ये 1 वाले के लिए इसको चेक करते हैं, a का बार करना है, a हम 0 1 लेके चल रहे हैं, a हमारा 0 है, a हमारा 0 है और b हमारा 1 है। तो a का बार इज़ 1 इंटू बी तो 1 ही था हमारा, प्लस a दैट इज़ 0 इंटू बी का बार 0, देखिए 1 प्लस 0 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली अगर आप 1 0 के लिए भी ट्राई करोगे तो ये 1 ही आएगा, बट जैसे ही आप 0 0 या 1 1 के लिए ट्राई करोगे दिस विल गिव यू 0। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द XOR गेट। इनको याद रखना अच्छे से प्लीज़, अच्छे से इनको याद रखना, ठीक है। XOR गेट की एक्सप्रेशन होती है ये। आगे बढ़ते हैं XNOR गेट की तरफ। XNOR gate and last gate, the video is about to end। तो थोड़ा खुश हो जाओ, आज की क्लास ख़त्म होने वाली है और खुशी खुशी इस क्वेश्चन को भी कर लो, क्वेश्चन नहीं, इस टॉपिक को भी समझ लो। XOR गेट क्या होता है, XNOR गेट। XOR हमने समझ लिया, अब हमारा गेट है XNOR गेट। X और NOR, कुछ घंटी बजी दिमाग की? नहीं बजी क्या अभी तक? इट इज़ नथिंग बट XNOR प्लस नॉट एंड विल गिव XOR। कुछ नहीं हो रहा, जो हमने ये इनपुट निकाला था अभी इसी का रिवर्स करने को कह रहा है वो मुझे, इसका नॉट कर दो। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे दोनों इनपुट सिमिलर होंगे, मतलब या तो 0 0 होगा या 0 1 हो या 1 1 होगा, तो ये हमें 1 देगा। बट जब 0 1 होगा या 1 0 होगा तो ये हमें 0 देगा। और इसीलिए इस गेट को हम इक्विवेलेंस गेट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ट्रुथ टेबल के बारे में तुम्हें बताया कि कैसे इनपुट भरेंगे, तो तुम मेरे को बताओ क्या होगा। 0 0 पे क्या देगा, ये 1 देगा। 0 1 पे क्योंकि डिसिमिलर है तो 0 देगा। 1 0 पे अगेन डिसिमिलर है तो 0 देगा, और 1 1 पे सिमिलर है तो 1 देगा। और इसकी एक्सप्रेशन बनेगी ए बी प्लस ए बार बी बार। अब
ध्यान रखो, अब ये वाला बार नहीं है, ए बी का होल बार नहीं है, अब ये वाला बार है, ए बार और बी का अलग से बार, ठीक है। अब करके देख लो इसको, 0 0 रख के देखते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू 0 और बी भी हमारा 0, तो ए 0, तो 0 प्लस 0 इंटू 0 हो गया पहले पे, तो प्लस दोनों का बार को साथ में प्लस करें तो 0 + 1 बनेगा एंड दैट इज़ 1। सो ये प्रूफ हो गया हमारा कि 1 है। ऐसे ही आप 1 1 के लिए भी ट्राई कर सकते हो और आप 0 0 1 के लिए भी ट्राई कर सकते हो, 1 0 के लिए वो आपको 0 देंगे। एक्स नॉर गेट कैसे बनाते हैं? एक्स नॉर गेट कुछ नहीं, अब तो हमें समझ आ ही गया है ये नॉर वाले कैसे बनाने हैं। वही वाला गेट बनाओ, एक्स और बनाया और उसके आगे एक नॉट लगा दिया, ए बी एक्स। दिस गेट ऑल्सो टेक्स 2 इनपुट्स एट अ टाइम। इसमें भी अगर 3 वाला आ गया तो कुछ ऐसा सा ही बनेगा डायग्राम, बस यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, मतलब ये आपका नॉर गेट आ जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट आ जाएगा। तो अब हमने सारे गेट सीख लिए, होमवर्क की बारी। वेल, आज की गुड न्यूज़ कि आज की वीडियो में कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, देयर इज़ नो होमवर्क, बट आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल गाइस, एंड दैट प्रॉमिस इज़ कि तुम ये सारे गेट्स अच्छे से, जितने भी पढ़े हमने आज, अच्छे से याद करके आओगे। इनकी टेबल्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, अच्छे से समझ कर आओगे। एंड देन हम अगली वीडियो में चलेंगे जिसमें होमवर्क मिलेगा। हर वीडियो में चॉकलेट नहीं मिल सकती। आज का आपका छुट्टी होमवर्क की, बट नेक्स्ट होमवर्क आज का यही है कि आज की वीडियो थॉरली समझो। नहीं समझ आए फिर से देखो, रिपीट करके 2-3 बार। यही टेबल्स, ट्रुथ टेबल्स कहते हैं ना जो हम बना रहे थे, ये ट्रुथ टेबल्स तुम बना के देखो हर गेट की, तुम्हें समझ आ जाएगी। जो रिटन पार्ट है दैट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, बट द ट्रुथ टेबल, द डायग्राम एंड द लॉजिकल एक्सप्रेशन जो मैंने बताई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबकी, वो आपको आनी चाहिए एंड आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अब वो। सो विद दिस हमारा आज का टॉपिक डन है, दैट इज़ लॉजिक गेट्स। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग नॉर गेट, एंड देन नॉर एंड नैंड गेट, एंड इन दोनों में से एक गेट तो मैं पढ़ाऊँगी आपको अच्छे से एंड दूसरे गेट का आपको होमवर्क मिलेगा। देखो होमवर्क भी इसी क्लास में बता दिया कि अगली क्लास की वीडियो के बाद का होमवर्क क्या होगा, बट हम एक गेट का अच्छे से समझेंगे एंड दोनों से सिमिलरली ही बनते हैं, एक दूसरे से बहुत सिमिलर सर्किट्स बनते हैं दोनों के लिए, बाकी सब के लिए। तो एक समझ जाओगे तो दूसरा खुद कर पाओगे, बट दूसरा को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you are a new person to this channel, do subscribe. Subscribers matter a lot, and press the bell icon for constant notification and getting in touch with us. And कोई भी guys, कोई भी doubt है, do come write it in the comment box and I will get back to you definitely. And the motive of Scholars Academy is to take everyone together to great heights and get success together. So we will meet you in the next video. Thank you.